اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کا اجلاس۔ آصف زرداری، شہباز شریف، خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی، عبدالعلیم خان سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کا اجلاس ہوا، جس میں آصف زرداری، شہباز شریف، خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی، عبدالعلیم خان سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے اور پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کا اجلاس ہوا، جس کے اندر سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف، صادق سنجرانی، عبدالعلیم خان اور دیگر سیاسی رہنما بھی موجود تھے۔ اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے اور پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، چارٹر آف اکانومی کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں، مستحکم بنانے میں مل بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اہم خبر، اسلام آباد میں یہ اجلاس ہوا۔ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر آصف علی زرداری، شہباز شریف، خالد مقبول صدیقی اور دیگر سیاسی رہنما مل بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک مخلوط حکومت بنائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہماری کوئی نظریاتی مخالفت نہیں ہے، مصالحت کی پالیسی کو آگے بڑھانا ہوگا، پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگی۔ اسلام آباد میں حکومت سازی کے لیے بڑی بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ دوستو، آج ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہر وہ مشکل جو ہمیں پاکستان میں پیش آ رہی ہے، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے ٹیررزم ہو یا ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے، ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے، اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا قرض ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا آنے والا ہمارے پاس کتنی قسطیں دینی ہے قرضوں کی، تو ہر چیز کو پہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں۔ ہاں ضرور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنیں بھی لڑے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے الیکشن میں ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے تو الیکشنری مخالفتیں تھیں، کوئی آئیڈیالوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں ہیں۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں اور ملک سنبھال سکتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کہ یہاں بیٹھے قیادت ملک کی 2/3 اکثریت ہے، اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو آئیں حکومت بنا لیں، گلے شکوے بھلا کر قوم کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز مسلم لیگ نون کی امیدوار ہوں گی، جبکہ صدر پاکستان کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ جو یہاں پر موجود ہیں، یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی، جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے۔ میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں، یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے۔ دھرنے اور لانگ مارچ جو انہوں نے کیے، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غربت ختم کرنے کا وقت ہے، یہ بے روزگاری ختم کرنے کا وقت ہے۔ پارٹی کی مشاورت سے، میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا پہلے بھی ساتھ دیا ہے اور اب بھی دیں گے، ایم کیو ایم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، سب مل کر جمہوریت کو مضبوط کریں۔ مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔
हम सब मिलकर बाहिमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे तो हम इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का मज़ीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने JUI के साथ मुमय्यना धांधली की शिकायत की हैं। उनका कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इसका शिकवा किया। हमारी जमात की राय है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी अब मंजर-आम पर आ गई है। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ का अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह भी किया है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत भी की है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने इस बारे में शिकायत भी की है और मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि हमारी जमात की राय है कि हम अपोजिशन में बैठें। मजलिस आमला के सामने अपनी दरख्वास्त भी रखूंगा। तो शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया है। मौलाना फजल रहमान ने JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत भी की। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी, जिस पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से शिकवा किया गया। उनका कहना था कि इंतखाबात में धांधली हुई है, हमारी जमात की राय है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। मजलिस आमला के सामने दरख्वास्तें रखूंगा, मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, मौलाना फजल रहमान की जानिब से अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया है, एक अहम मुलाकात है, इस मुलाकात का मजीद अहवाल बताइएगा। देखिए, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे और उनसे मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने के लिए नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत दी और मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जो उनके साथ इलेक्शन में हुआ, उस हवाले से भी आगाह किया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन के अंदर जो उनकी पार्टी के साथ धांधली की गई है और गिले शिकवे भी करते हुए मौलाना फजल रहमान जो है वो दिखाई दिए। लेकिन जो नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी जानिब से कहा गया कि आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो चूँकि उनकी मजलिस शूरा का इजलास जो आज जारी रहा उसमें तमाम तर मशावरत की गई है, लेकिन तमाम जो शूरा के लोग हैं उनकी जानिब से ये जो एक जो सामने आया है वो ये आया है कि हमें जो है वो अपोजिशन में बैठना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि मैं अपनी मजलिस शूरा से के सामने जो है वो आज रखूँगा, चूँकि आज भी मजलिस शूरा का इजलास होगा और तमाम अपने लोगों को आगाह करूँगा कि नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से ये जो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं तो इस हवाले से आप क्या मशवरा देते हैं। तो उसके बाद मजलिस शूरा जो भी कहेगी उसके हवाले से आपको अपने फ़ैसले से और मजलिस शूरा के फ़ैसले से आगाह करूँगा। शहबाज शरीफ जैसे ही रवाना हुए तो उनकी कुछ ही देर बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बताया कि हम इस पोजीशन में नहीं कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। वफाकी हुकूमत में वजारतें भी नहीं लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा है आप भी देखिए। हाथ से निकालना है तो वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ देना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डज नॉट हैव अ मैंडेट
to form government, to form the federal government. और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. हम part of the government नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे. मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने. हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए. इतलात है हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है. उम्मीदवारों को ख़रीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी होगा. उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं. मज़ीद क्या कहा मुलाहिज़ा कीजिए. अगर हमारे KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते. ऐसा नहीं है. हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में, और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम क्या समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है, और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया उसी वक्त हुआ है. हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे. अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं. बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम आगे की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, इकानमी बेहतर हो, मुल्क बेहतर हो, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़त्म हो, स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाए. तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मैंडेट कहाँ जाता है. मैंडेट तो हमें अवाम ने दे दिया, उसका एहतराम किया जाए. हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है. इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुकेशन की तरफ राइट है नहीं जाएंगे.